Namaste everyone, Master Praveen here, and I wish and hope that you all are doing great and you are doing your yoga practice every day. So our today topic is yoga for reduce fat from the thigh muscle. अगर आपको लगता है कि आपकी जो लोअर बॉडी है that is heavier than your upper body, so this video is for you. Common problem nowadays, this is a very common problem nowadays because of the having the fat in the thigh and the hip. Especially ये जो problem है that this problem is usually commonly is facing by the women. Women के अंदर ज़्यादा problem इसलिए because because of the pregnancy and also after giving the birth to the child. उसके बाद भी ये problem थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है and we cannot avoid this thing because this is a natural process. And ये जो problem है it can also cause and it can also lead some other problem as well. जैसे कि उसमें आपके नी के प्रॉब्लम को भी ये थोड़ा सा और ज़्यादा इफेक्ट आपको करता है एंड उसके बाद जैसे कि आपका जो है फैटिग्यू है उसको आपका ये उसको ज़्यादा इफेक्ट आपको ये करता है. सो हियर आई विल टीच यू अबाउट सम 10 बेस्ट योगा asanas and some best exercise that is mixing about all these practices in this video. उसको अगर आप करेंगे so with the practice of all this series, all this sequence at your home, and then you will easily and you will definitely get the result with that. आप उनको एक तरीके से करेंगे, मैं आपको sequence step by step मैं आपको उन सभी practice के अंदर मैं लेके चलूंगा and all this practice will be very beneficial. लेकिन उन सभी को करने के लिए आपका trust और आपके faith का होना बड़ा जरूरी है. And another thing you need to have the regular practice for that. ये नहीं कि आपने आज practice किया, आपने 2 दिन प्रैक्टिस किया and after that you are doing the practice after 1 week. आपने हफ्ते में एक बार किया 2 बार किया and you want to result, ऐसा नहीं होगा. You have to be continuously practice. आपका जब तक डेली बेसिस पर रेगुलर बेसिस पर आपका प्रैक्टिस नहीं जाएगा until you will not get the result. आपको रिजल्ट बेनिफिट उसका मिल ही नहीं पाएगा. So okay, we will not waste the time. We will go with that. So firstly I will give you some sitting practice. Sitting practice के अंदर we will start with the butterfly. But before butterfly एक easy जो practice रहता है that so that you can be work on the hip joint, because maybe if someone already have a big thigh, for them butterfly can be have a bit difficult and bit challenge. So उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए पहले हम 1 by 1 leg से हम करेंगे इसे. जैसे कि आपने 1 leg से किया, put the right leg on the left upper thigh, धीरे धीरे आप उसको कीजिए, धीरे पुश के साथ उसे आप कीजिए so that you can be give a warm up to your hip joint. आप इसे 10 टाइम्स कीजिए, आप इसे 20 टाइम्स कीजिए, लेकिन विदाउट एनी जर्क्स. सो सेम प्रैक्टिस आप दूसरी तरफ से कीजिए. आई विल गिव यू दैट ऑल प्रैक्टिस, मे बी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं आपको करूँ. सो करना कैसे है, 3 4 सेम थिंग, आप उसको 10 टाइम्स कीजिए, आप उसको 20 टाइम्स कीजिए, लेकिन आपको ये जर्क्स के साथ आप कोई प्रैक्टिस नहीं करें. नेवर गिव द जर्क्स लाइक दैट बिकॉज इट कैन बी कॉज ऑफ एनी जर्क्स एंड कैन बी कॉज ऑफ एनी इंजरी इन द हिप जॉइंट. आफ्टर दिस प्रैक्टिस आप रिलैक्स कीजिए and then you have to become in the butterfly. Some student they already have a hip flexibility, enough flexibility, वो direct भी butterfly कर सकते हैं. But if somebody is a beginner, they already have a stiffness, already have a big thigh, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल वो हो जाता है. That's why first we go with the 1 leg and after you can try with the both legs. So आप अपने feet को hold कीजिए ऐसे and आपको simply आपको knees को swing करना है. अगर आप beginner है, you are a beginner, so initial level might be you are not able to do very fast. और आपको फास्ट करने की जरूरत भी नहीं है. You don't need to do very fast. Initial level आप बस ऐसे धीरे धीरे आप कीजिए, बिल्कुल धीरे धीरे. After practice by practice, when you will feel that your flexibility is increasing, then maybe you can go a bit faster than this. आप उससे थोड़ा सा और स्पीड आप उसमें कर सकते हैं. So ये जो practice है, that practice will give up the flexibility in your hip joint and of course it will be also work in your inner thigh. So इसके भी हम कुछ रूटीन हम बनाएंगे. जैसे कि इनिशियल लेवल आप फ्यू डेज, जैसे कि अगर आप 1 वीक प्रैक्टिस कर रहे हैं, 2 वीक प्रैक्टिस कर, आप इसी लेवल पर कीजिए एंड आफ्टर सम टाइम्स आप इसी प्रैक्टिस को थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल पर आप इसमें लेके जा सकते हैं. देखिए कि एक ही प्रैक्टिस को हम डिफरेंट मॉड्यूल्स हम प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन इट डजंट नेसेसरी कि ऑल द प्रैक्टिस यू हैव टू बी परफॉर्म एट ए वन टाइम, कि सारी प्रैक्टिस आप एक बार ही नहीं कीजिए. 1 by 1 आपको जाना है. इसको आप पुश करते रहिए जैसे हमने 1 by 1 लेग को किया था एंड यू डायरेक्टली इफेक्टेड. आप इसको 10 टाइम्स कीजिए, 20 टाइम्स कीजिए, धीरे धीरे आप इसमें रेपिटेशन बढ़ा सकते हैं. वंस यू डन दिस लेवल, जब आप कुछ दिन के बाद आपको लगे कि यस नाउ आर यू इंप्रूविंग योर हिप
flexibility is increasing, आप उसमें stay कर सकते हैं ऐसे. After that even you can be put more stretch and more intense in the practice. You can be bend forward also. Bending forward भी आप जा सकते हैं because when you go bend forward so it will become a bit more intense level. But remember मैंने आपको बताया कि आप सारी प्रैक्टिस को one time आपको करने की जरूरत नहीं है. But if you already have a flexibility then you can. आपको अपने आप को फॉलो करना है. मेरी चीजें फॉलो कीजिए लेकिन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसके अंदर जाइए. ये प्रैक्टिस के बाद आप रिलैक्स कीजिए. बाकी बटरफ्लाई के अंदर बहुत सारी डिफरेंट मॉडिफिकेशंस इसमें चलती है लेकिन इनिशियल लेवल पर दैट इज इनफ फॉर यू. आफ्टर बटरफ्लाई विल बी प्रैक्टिस द वज्रासना. ओके यू कैन बी रिलैक्स्ड. वज्रासना को प्रैक्टिस करने के लिए हम पहले 1 by 1 लेग से हम प्रैक्टिस करेंगे उसकी. सो फर्स्ट आप प्रैक्टिस कीजिए वज्रासना. आई विल बी डिवाइड इन द 2 वज्रासना एंड द सुप्त वज्रासना. तो ये हमारा एक ही हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा लेकिन उस कॉम्बिनेशन में जाने के लिए मैं आपको पहले स्टेप बाय स्टेप मैं गाइड करूंगा. एग्जांपल आपको पहले प्रैक्टिस करना है लेफ्ट लेग से. लेफ्ट लेग को बेंड कीजिए. लेफ्ट फुट को थोड़ा सा हिप से बाहर की तरफ कीजिए एंड आप इसमें स्टे कीजिए. But remember, if someone is having already knee pain or ankle pain, in that case, totally आपको ये avoid करना है. But in case maybe because of the hip stiffness, उस केस में अगर नहीं कर पा रहे हैं, आपको लगता है कि that is quite difficult, challenging from the hip joint, so in that case आप ऐसे ब्लॉक हैं आपके पास या पिलो हो सकता है कोई भी, आप ऐसे हिप के नीचे रख लीजिए. then you can be here. After practice by practice, जब आपको लगेगा कि your flexibility is increasing and your thigh fat is decreasing, जब वो reduce होगा then will be fine कि आप बिना ब्लॉक के भी आप प्रैक्टिस आप कर पा रहे हैं. इसे स्टे कीजिए फ्यू सेकंड्स के साथ में. रिलैक्स कीजिए. द सेम प्रैक्टिस यू हैव टू बी टू अदर साइड. फिर आपको दूसरी तरह से आपको इसका प्रैक्टिस करना है. लेफ्ट से किया फिर राइट से किया. अबाउट ड्यूरेशन, होल्डिंग कैपेसिटी इज आल्सो डिपेंड्स. मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि वन टाइम आपको ये 2 मिनट या 3 मिनट आपको होल्ड करना है बिकॉज इट कैन बी कॉज ऑफ एनी इंजरी आल्सो. तो धीरे धीरे जैसे कि आज आपने 10 सेकंड किया, यू फीलिंग 10 सेकंड, ओ आई एम फीलिंग इनफ इन द 10 सेकंड्स. रिलैक्स कीजिए. रेपिटेशंस आप कर सकते हैं. रेपिटेशन आप 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम आप कर सकते हैं. होल्डिंग आल्सो धीरे धीरे आप बढ़ाइए. 1 वीक कीजिए 10 सेकंड, देन उसके बाद 15 सेकंड, देन 20 सेकंड. वो आपको अपने आप ही पता लग जाएगा कि यस आई एम इंप्रूविंग, माय फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूविंग, माय स्ट्रेंथ इंप्रूविंग, माय फैट इज रिड्यूसिंग. तो आप धीरे धीरे आप उसमें ऑटोमेटिकली आप ज्यादा कर पाएंगे. 1 by 1 लेग करने के बाद देन आई विल टेक यू इन द वज्रासना. इन वज्रासना यू हैव टू बी बेंड बोथ लेग्स टुगेदर, जिसमें आपको आपके हील के ऊपर आपके दोनों हिप आपके आ जाएंगे. और देखिए वज्रासना की देयर इज अ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द वज्रासना. इसकी बड़ी खासियत भी है. ओनली दिस पोस्चर वी कैन बी डन आफ्टर ईटिंग द फूड. अदरवाइज कोई भी आसना आप खाना खाने के बाद नहीं कर सकते हैं. बिकॉज वज्रासना व्हाई? बिकॉज व्हेन यू सिटिंग इन द वज्रासना इट इज आल्सो हेल्प टू डाइजेस्ट योर फूड इजीली. ये आपके डाइजेशन सिस्टम को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करता है. कुछ रीजन है इसके. बिकॉज व्हेन यू सिटिंग इन दिस पोस्चर आपके जो हील है वो आपके जो हिप के अंदर कुछ पॉइंट्स है जो उनको प्रेस करते हैं. दैट इज इजीली इफेक्ट योर डाइजेशन सिस्टम. तो वज्रासना की आपको प्रैक्टिस करनी है इस तरीके से. स्टिल समवन दे फीलिंग नो दिस इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर देम, तो आप 1 by 1 लेग से ही आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए. आफ्टर वज्रासना नाउ आई विल टेक यू इन द सुप्त वज्रासना. दैट इज more effectful and that is more intense and that is more beneficial. लेकिन एक बारी में नहीं आएंगे. आप उसको ऐसे स्टेप बाय स्टेप में आप उसको डिवाइड कर लें. तो सुप्त वज्रासना के अंदर सिंपल थिंग, आपको आपके जो फीट है वो ऐसे बाहर की तरफ आएंगे एंड योर हिप शुड बी इन बिटवीन द फीट. आपको इस पोजीशन में आपको बैठना है. मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप में इसलिए मैं आपको लेके जा रहा हूँ क्योंकि डायरेक्ट इफ आई विल टेक इन द सुप्त वज्रासना तो माइट बी फॉर द बिगिनर्स कैन बी अ वेरी बिग चैलेंज. उनके लिए एक चैलेंज हो सकता है. That's why आपको 1 by 1 लेग से प्रैक्टिस कीजिए, देन वज्रासना की प्रैक्टिस कीजिए, देन आपको सुप्त वज्रासना की प्रैक्टिस करना है. तो सुप्त वज्रासना में जाने से पहले आपको इस पोजीशन की आपको तैयारी करनी है. आपको इस पोजीशन में स्टे करना है. स्टे कीजिए 10 काउंट, 20 काउंट, 30 काउंट, 40 काउंट. धीरे धीरे आपको वो इंक्रीज आपको करना है. स्टिल इफ समवन यू आर फाइंडिंग द चैलेंज डिफिकल्ट, आपको लग रहा है स्पाइन सीधी नहीं हो पा रही है, यू आर फीलिंग द स्टिफनेस इन द हिप जॉइंट, तो जबरदस्ती मत कीजिए अपने साथ में. स्टिल आप यू हैव द ऑप्शन, आप ब्लॉक के साथ कर लीजिए. ब्लॉक इन बिटवीन द लेग्स. एक ब्लॉक के साथ आप नहीं कर पा रहे, ब्लॉक नहीं है, आप पिलो ले लीजिए. एक ब्लॉक के साथ स्टिल यू आर फाइंडिंग डिफिकल्टी, आप 2 ब्लॉक के साथ तैयारी कर सकते हैं. 2 से आपको मुश्किल लग रहा है 3 ब्लॉक से कर सकते हैं. बिकॉज दैट विल बी ऑल डिपेंड्स ऑन योर लेवल. ऑलरेडी थाई में इनर फैट है, सो मे बी इट कैन बी वेरी वेरी बिग चैलेंज. तो आप ऐसे आप उसको प्रैक्टिस कीजिए. आफ्टर प्रैक्टिस
नाउ यू आर एबल टू डू विद वन ब्लो, नाउ यू आर एबल टू डू विदाउट ब्लो, देन आप यहाँ स्टे कीजिए। इसके बाद जो और लेवल जो आपके आएंगे, यू कैन पुट योर आर्म्स बैक, आप ड्रॉप एल्बो कीजिए, बिकॉज व्हेन यू ड्रॉप एल्बो इंटेंस लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा आपका। यहाँ स्टे कीजिए। वंस यू डन दिस प्रैक्टिस, आफ्टर यू प्रैक्टिस, दिस इज द एग्जैक्ट सुप्त वज्रासना, जिसके अंदर आप हाथ पीछे लेके जा सकते हैं, आप हाथ यहाँ रख सकते हैं, आप नमस्ते कर सकते हैं, एल्बो यहाँ रख सकते हैं, हिप को पुश करना है, स्पाइन को पुश करना है अगेंस्ट द फ्लोर। सो दिस इज आल्सो द वन, दिस इज एग्जैक्ट सुप्त वज्रासना। उसको स्टे कीजिए आप 10 सेकेंड्स, 50 सेकेंड्स, 20 सेकेंड, धीरे धीरे आपको अपनी जो इसके अंदर आपकी जो ड्यूरेशन है होल्डिंग है वो आपको इंक्रीज करनी है। बट अगेन वन रिमाइंडर, नी पेन है, एंकल पेन है, टोटली अवॉइड कीजिए। आप इस पोस्चर को अपनी लिस्ट से निकाल दीजिए। अगर इस only because of the hip joint you are not able to do it, maybe because of the thigh stiffness you can do it, ankle stiffness you can do it, उसके लिए मैंने आपको ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। जैसे जैसे इंप्रूवमेंट आएगी वैसे वैसे आप उसमें जा सकते हैं। सो ये आपका हो गया आपका सेकंड प्रैक्टिस। अब देखिए सेकंड प्रैक्टिस को हमने डिवाइड किया एक डिफरेंट वे के साथ। तो इन चीजों का ध्यान रखना, इनको आप बिल्कुल इजी में मत लीजिएगा, स्पेशली फॉर द बिगिनर। Someone they are doing the practice long time, उनके अंदर already they have enough flexibility, so they can do practice. But it's a good, आप butterfly कीजिए, then one by one leg से कीजिए, then वज्रासना कीजिए, then सुप्त वज्रासना की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, ये हो गया आपका सिटिंग के साथ में। Now I will take you the another practice, that is the lying down position. Lying down position विदा मैं पहले आपको lying down विदा चेस्ट में आपको मैं लेके चलता हूँ। That posture is the Salabhasana. Salabhasana also have some different module and different step. Step 1 like अर्थ शलभासना के अंदर भी कुछ different modules उसके अंदर चलते हैं। मैं आपको शलभासना भी तरीके से मैं गाइड करूंगा। मैं आपको ना ऐसे जल्दी में नहीं लेके जाऊंगा आपको। मैं I will give you the proper explanation so that you can be take the maximum benefit. मैं पहले आपको तैयार करूंगा पर्टिकुलर उस पोस्चर के लिए। आपकी प्रेपरेटरी प्रैक्टिस रहेंगी, आपकी मूवमेंट रहेंगी, फिर बेसिक आसना सीक्वेंस एंड देन एग्जैक्ट आसना सीक्वेंस। डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट, घबराना नहीं है आपको। सो इन द फर्स्ट विल प्रैक्टिस द अर्थ शलभासना विद सिंपल मॉड्यूल्स। उसके लिए आपको लेटना पड़ेगा ऐसे, लाइंग डाउन विद द चेस्ट, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू प्लेस, आपको दोनों हाथ अपने थाई के नीचे, और कोशिश कीजिए पाम शुड बी फेसिंग डाउन, इस तरीके से रख लीजिए। शोल्डर जो है आपके ना ऐसे सिंक नहीं away from the ear, कोशिश कीजिए, chin रखिए, chin on the mat. First practice will try with only one leg. आप सिर्फ one leg से कोशिश कीजिए, stay कीजिए यहाँ पर, नी को बैंड लॉक कीजिए। इनिशियल लेवल माइट भी आप लेग को इतना ही उठा पाए, लेकिन अवेयरनेस आपको रखना, ऐसे नहीं रखना, अवेयरनेस शुड बी देयर। स्टे कीजिए 1 2 3 4 5 6, try to be 10 times 20 times you can be। आफ्टर दैट चेंज द लेग, आप दूसरी तरफ से सेम प्रैक्टिस कीजिए, सेम 10 काउंट्स 20 काउंट 30 काउंट्स, एंड देन आप उसमें रिलैक्स कीजिए। सो इनिशियल लेवल पर आप यही रूटीन रखिए फॉर 1 वीक, फॉर 10 डेज। आफ्टर दैट जब आपको लगे कि यस नाउ आई हैव इनफ स्ट्रेंथ इन माय लेग्स एंड माय कोर, द नेक्स्ट प्रैक्टिस ट्राई विद द बोथ लेग्स। सो यू टू लिफ्ट द बोथ लेग्स। मे बी जब आप फर्स्ट टाइम आप बोथ लेग्स अप करेंगे तो मे बी आपको लगे yes it's a very strong posture, you need to be squeeze your butt, squeeze your inner thigh and work on the core. So initial level पर आप head को उठा लीजिए, वो आपके लिए थोड़ा easy रहेगा, it will be easier for you, head up like that and stay कीजिए। legs do not be bent, it should be straight, legs together everyone, stay कीजिए 1 2 3 4 and then relax। मे बी इनिशियल लेवल जब आप इसको even 4 काउंट 5 काउंट पर होल्ड करेंगे, you will get tired, and tired means your muscles are not strong enough, that's why you are feeling tired। जैसे जैसे स्ट्रेंथ बनेगी, इंक्रीज होगी, then you will not be tired, you can be do easily more। उसके बाद जब आपको लगे कि next now I am ready for next level, then आप next level पर जाइए, legs up, this time chin on the mat, stay कीजिए 1 2, legs straight, lock the knee, you can toes facing out, it will be more easier for you। core को contract कीजिए, engage your core। 4, breathing normal, 5 6, lock the knee, 7 8 9 and 10 and relax। You see, I am doing it, so मुझे भी ऐसे I'm also feeling myself sweating because lot of strength and lot of energy
एनर्जी आपको इसमें यूज आपको करना पड़ता है. मे बी यू हैव सम क्वेश्चन कि सर वी आर डूइंग इट बट वी आर नॉट एबल टू कीप आवर लेग्स टुगेदर. हम अपने लेग को मिला के नहीं कर पा रहे. उसका फिर क्या सोल्यूशन है? मोस्टली स्टूडेंट्स मे बी दे स्ट्रगलर, वो ऐसा उनका प्रैक्टिस है, लेग ओपन रहते हैं उसके अंदर. सो डोंट वरी, हमारे पास उसका भी ऑप्शन है. यू नो आई एम द मिस्टर ऑप्शन. सो इन दैट केस आपके पास ब्लॉक हो सकता है. ब्लॉक लीजिए और अपने ऐसे दोनों पैरों के बीच में ले लीजिए, इन बिटवीन द फीट, दिस वे, एंड देन ट्राई द सेम. ब्लॉक लेने के बाद आपको थोड़ा सा ना वो हो जाएगा लाइक दैट, एंड इनहेल, एक्सेल, देन अप. ब्लॉक के साथ यू हैव टू कीप प्रेसिंग द ब्लॉक एंड स्टे. आपको एक सपोर्ट मिल जाएगा लेग स्ट्रेट करने के लिए. स्टे कीजिए एंड देन रिलैक्स. गुड. सो ये हो गया हमारा लोकस्ट पोज का प्रैक्टिस. मे बी इन फ्यूचर मैं अभी लोकस्ट पोज को, इफ आई गिव कंप्लीटली एक्सप्लेनेशन अबाउट द लोकस्ट पोज, तो मुझे उसके लिए भी एक स्पेशल वीडियो मुझे उसके लिए बनाना पड़ेगा. दैट विल टेक मी मिनिमम 20 to 25 मिनट मुझे वो समझाने में लगेंगे. लेकिन आपको ज्यादा डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है. जैसे ये देखिए कि इसको स्टेप कैसे करेंगे. वन लेग से कीजिए, बोथ लेग से कीजिए. बोथ लेग में आपको चैलेंज आते हैं तो वो आप ऐसे भी आप कर सकते हैं. हेड को उठा के किया, आपको लगे कि स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग, देन ड्रॉप द हेड. सो ये हो गया हमारा लोकस पोस्चर. इसके बाद जो हमारी जो प्रैक्टिस आएगी, दैट प्रैक्टिस विल बी द lying down with the back. So lying down with the back also have some practice. मैं पूरा डिटेल उसमें रूटीन में नहीं जाऊंगा. I will just give you that technique. But when you do your own practice, जब आप अपने रूटीन की प्रैक्टिस आप करेंगे, आपको पूरे प्रॉपर तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है. आपको ये नहीं कि जैसे मैं चल रहा हूँ, मैं बिकॉज I also need to give the demonstration, I also need to give the explanation, ताकि आप उसको अच्छे तरीके से समझ पाए. The next practice is, you can be take one leg up, any one leg, like left leg up, and after you have to do the one leg rotation इस तरीके से. So that is a good mobility, flexibility for your hip, and it will also affect your thigh fat. Initial level पर आप देखिए 5 राउंड कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, and after that you have to do opposite side. उसको opposite भी आपको करना है. कोशिश कीजिए कि आप उसको जितना बड़ा राउंड आप ले सकते हैं. देखिए बिग सर्कल ऐसे कीजिए. आप उसको 10 टाइम्स कीजिए, 10 टाइम्स लेफ्ट टू राइट, 10 टाइम राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट चेंज कीजिए, फिर राइट लेग से आपको प्रैक्टिस करना है. बट इट शुड बी स्लोली. वो आपको ऐसे जल्दी जल्दी नहीं करना है. इट्स हैज ए लिटिल एक्सरसाइज, बट इट शुड बी हैव विद अ कंप्लीटली अवेयरनेस. वो पूरी अवेयरनेस के साथ आपका होना चाहिए. धीरे धीरे वो आपका लेग मूव होना चाहिए. सेम यू डिड 10, तो 10 टाइम आपका वो अपोजिट ही जाएगा. ये नहीं कि आपने एक वन साइड किया वन राउंड और अपोजिट साइड आपने नहीं किया. नो, यू हैव टू बी डू क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज, तभी आपको उसका रिजल्ट आपको मिलेगा. दैट इज आल्सो वेरी वेरी गुड प्रैक्टिस. आफ्टर टाइम बाय टाइम आप उसमें रेपिटेशन इंक्रीज कर सकते हैं. जैसे कि इनिशियल आप 5 के राउंड कीजिए, देन 10 का कर दीजिए, देन 15 कर दीजिए, देन 20 कर दीजिए. तो दिस इज अप टू यू. धीरे धीरे जैसे जैसे आपको इंप्रूवमेंट लगेगी, आपका स्ट्रेंथ लेवल, एनर्जी लेवल इंक्रीज होगा, एंड यू विल गेट थिंक यस माय थाई फैट इज रिड्यूसिंग, देन डेफिनेटली यू कैन बी डू मोर. पहले मे बी अगर किसी को ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है तो मे बी अगर किसी को